Hello dear students, very good morning to all of you. Welcome back to the next lectures of this series, that is our environment in one short lectures. Most important thing, if you know or if you are confident कि your chapters is already prepared, आपने पूरा complete पढ़ लिया है, just only you need कि आपको सिर्फ question solve करने की ज़रूरत है, तो then you can skip the videos and in the last slides, in the last of the video, I mean in the end of the lectures I have put some questions for you and जिसको हम solve करते हैं on the basis of the marking scheme of the board examination. तो आप आगे की वीडियो को skip करके you can shift on that portion only जहाँ पे हमने questions को solve किया है with their explanation, with their marking scheme. Alright, so without delaying, let's start with our environment in one shot. And if you are not confident, if you are lacking somewhere in the chapters, then you will definitely read with this topic. Okay, just know about your things कि आप कहाँ पे lack करें. If you are lacking in some topics of this our environment or life process or control and coordination or heredity, so just you have screen out that topic only and उस topic पे सिर्फ आपको focus करने की जरूरत है. Don't waste your time or don't waste your all the things on that topic which you have already prepared, जिसके क्वेश्चंस आपके सारे बन जा रहे हैं. और अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर्स हमने पढ़ा लिया है और हमारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन्स को क्लियर आउट करने के लिए जस्ट गो टू द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर्स एंड solve the questions with me. Okay, so this is your Ananya ma'am. I welcome you all on the Rankers Anti-SC platform for one shot lectures, and this is our last one shot lectures, and after that I will make some series of the questions which is only for you guys. Okay, so let's start with the our environment. What do you mean by the environment? Environment is the factors which regulates which compile the biotic and abiotic components, or you can say it is the compilation of ecosystem. ठीक है, it is a compilation of the ecosystem. अब ये हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमारे इसमें इन्वायरमेंट में पड़ी हुई है. इन सारी चीजों को कंपाइल करके इसके इम्पैक्ट, इसके बैड इम्पैक्ट एज वेल एज द गुड इम्पैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट्स. इन्वायरमेंट्स और surroundings is the totality of external factors. Whatever the external factors are our surroundings, the conditions, substance, organism living in it, हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, all these are considered as the environment. क्या कंसिडर की जाएगी बच्चा? environment. It has both living and non-living components, and living components is called as the biotic components, and non-living is considered as the non-biotic, or simply you can say abiotic components. These are non-living. Abiotics are the non-living components and we are dependent on the each other. हम बायोटिक के ऊपर डिपेंड है, बायोटिक हमसे रिलेटेड है, तो एक दूसरे को मिला करके, बायोटिक और एबायोटिक को मिला करके हमारा बनता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को हम कहते हैं हमारा सराउंडिंग्स, एंड दैट इज कंसिडर एज द इन्वायरमेंट. ओके, so ecosystem includes various communities of plants, microbes, fungi, animals with their physiological environments. It consists of two major components, that is biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components मिला करके हम लोग कहते हैं क्या? अवर इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? एक कम्युनिटीज होती है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ग्रुप ऑफ फंजाई, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, या which includes both the biotic as well as the abiotic components, and this is considered as the ecosystem. और ecosystem को compile करके क्या बनाएंगे? Environment. These are the synonyms of each other. Okay. So what are the components of abiotic factors? Like abiotic components क्या क्या होते हैं? First of all, climatic factors. Climatic factors like temperature, okay, pH, etc. Edaphic factors, topographic factors, and non-living substance. These are the abiotic factors. And what are the biotic factors?
producers, consumers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. These are the different consumers. Producer which produce the like food, जो produce करता है, और इसमें all the plants consider किए जाते हैं, और ये सब बेटा क्या है, consumers है. Decomposers which break down the complex food into complex organic substance into simpler one. This is called as the decomposers. Consumers which consume the food by plants product directly or indirectly. जैसे we depend on plants directly or indirectly. Carnivores depends on plant for the indirectly. Herbivores depends on plant directly. ठीक है, directly or indirectly. Carnivores, the organism is depends on the non-living things. Depends on the fleshes only. Omnivores, omnis का मतलब होता है सर्वा. Organism which depends on the both plant and fleshes. Parasites, the organism which depend on other living organism for their food. Okay, for their food. अब इनको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल में. जैसे प्रोड्यूसर्स हैव ऑलवेज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली जो डिपेंड होते हैं हर्बीवोर्स, वो किस में आ जाएंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में. हर्बीवोर्स के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल. उसके ऊपर जो डिपेंड रहेंगे क्या हो जाएंगे, वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. एंड उसके ऊपर जो डिपेंड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल. तो ट्रॉपिक लेवल्स एनर्जी का लेवल्स होता है, फूड का एक लेवल होता है जिसमें एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिक लेवल. जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज फॉर द प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट्स के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को, उनको हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कैटेगराइज करते हैं. फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जो प्लांट्स में यानी कि ऑल द हर्बीवोर्स, ओके, सारे के सारे इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, हर्बीवोर्स आ जाएंगे. What about थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स? थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स में वी विल डिस्कस अबाउट जो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और यू कैन से कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. इसके ऊपर जो डिपेंड्स रहते हैं दैट इज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. इसके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं दैट इज द फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल. तो ट्रॉपिक लेवल इज द ग्रुप ऑफ और कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज फूड चेन. अच्छा, मैंने बार बार बोली हूँ डिपेंड रहते हैं. तो कैसे डिपेंड रहते हैं, वो फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं. फूड के लिए डिपेंडेंसी होती है, एनर्जी के लिए डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स के लिए डिपेंडेंसी होती है. तो फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिक लेवल. ये ट्रॉपिक लेवल का सीक्वेंस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइक जो फूड को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर. जैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड है कोई हर्बीवोर्स लाइक डियर, तो प्लांट हैव लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी. प्लांट से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, डियर के पास. तो एक ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर में कि कौन आ गया, प्लांट. प्रोड्यूसर्स के नीचे आ गया बच्चा डियर. तो प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है डियर में, डियर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मान लो लायन खा रहा है डियर को,
तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी और सर्टेन अमाउंट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफर होंगे कहाँ, लायन से डियर में। तो इस सीक्वेंस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड रहता है और डिपेंडेंसी ओनली वन पे होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द फूड चेन। इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस में चलता है। लाइक अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। अब बच्चे इसकी मैं बात क्या कर रही हूँ, जस्ट लुक ओवर हियर कि हम लोग प्रोड्यूसर्स में क्या पढ़ते हैं, प्लांट, प्लांट के ऊपर मान लो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं, सपोज दिस वन इज द ग्रासहोपर्स, दिस इज ग्रास, ओके, दिस वन इज द ग्रासहोपर्स, ग्रासहोपर्स के ऊपर कौन आ जाएंगे, फ्रॉग, तो फ्रॉग विल बी योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ग्रासहोपर्स, then this would be your primary consumers, secondary consumer would be frog, and top consumers will be hog, and after that it will be degraded, decomposed. The decomposers will be your fungi or bacteria. This would be fungi or bacteria. All right, this is called as the food chain. Why food chain? Because कि we can say एक चेन चल रही है यहाँ पे, प्रोड्यूसर से किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड है, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, और टर्सरी कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, फाइनल कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड है, टर्सरी कंज्यूमर्स पे, स्नैक पे, और आपके जो ये डिपेंड्स लाइक डिकम्पोजर्स किसका डिकम्पोज करते हैं, फाइनल कंज्यूमर्स का डिकम्पोजिशन होता है, फाइनल कंज्यूमर्स का यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। लाइक फ्रॉग वाज ईटन बाय द स्नेक, स्नेक वुड बी योर टर्सरी कंज्यूमर्स, देन हॉग विल बी योर क्वार्टनरी कंज्यूमर्स, और यू कैन से द टॉप कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो फूड चेन में अगर ये एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है, ग्रासहोपर्स को हम लोग सपोज एलिमिनेट कर दें, तो व्हाट हैपेंड, आगे की फूड चेन नहीं चलेगी, आगे का फूड चेन नहीं चलेगा। दिस इज द सीक्वेंशियल इवेंट, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कंप्लीटली, ठीक है। व्हाट अबाउट फूड वेव, अगर हम बात करें तो फूड वेव में हम देखेंगे कि फूड वेव में हम लोग क्या देखेंगे कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर देयर। अगर एक ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन खा रहा है, ग्रासहोपर्स, ठीक है, और क्या खा रहे हैं, डियर, इसको खा रहे थे बेटा फ्रॉग, यहाँ पे मान लो रैबिट भी रख देती हूं मैं, ऑलराइट। फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा था, स्नेक, रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक, स्नेक को कौन खा रही है, पीकॉक, डियर को कौन खा रहा है, लायन। तो अगर हम सिस्टम में से फ्रॉग को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या स्नेक सरवाइव नहीं करेगा, स्टिल स्नेक विल बी सरवाइव बिकॉज स्नेक हैव द अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज रैबिट। तो एक रिसोर्सेज के लिए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फूड वेव। द फूड वेव इज द नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन। बहुत सारे फूड चेन का ये क्या होता है, कनेक्टिविटी लिंक होती है, नेटवर्क जिसको कहते हैं हम लोग। और एक अगर सोर्स हमारा खत्म हो जाता है तो देयर विल बी अनदर सोर्स फॉर द सर्वाइवल फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, सो यहाँ पे नेटवर्क होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, दे गेट इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। So various trophic levels it makes each food available to several population and population capable of feeding the several foods, that is called as the food web। तो इसके अलावा जो फूड चेन होता है उसको कुछ फीचर्स होते हैं
let's discuss about the features या characteristic features of the food chain. There is a unidirectional होता है हमेशा, food chain unidirectional होता है, but food wave is the bidirectional, multiple direction में ये flow होता है. The energy from some to producers and then series of consumers have various types. Thus the food chain is always straight and proceeds in a progressing straight line. कभी भी reverse back नहीं आता, स्ट्रेट ही हमेशा चलता होता है. अगर फ्लो ऑफ एनर्जी आप इकोसिस्टम में देखें तो हमेशा इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. फूड चेन भी आपका क्या है, यूनिडायरेक्शनल. फूड यानी कि इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज टाइप ऑफ एनर्जी. प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट से वो ऑलमोस्ट 1% एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं. कितना करते हैं, 1%. और इससे ये 10% आगे करके ट्रांसफर करते जाते हैं. हाँ, about 1% of solar energy falling on leaves is changed into the organic food materials. तो ऑलमोस्ट 1% एनर्जी को ये इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जन से ये 1% एनर्जी ही यूजफुल हो पाती है. बाकी नेक्स्ट 10% लॉ क्या कहते हैं, ये इसको लिंडमैन्स का भी रूल कहते हैं. ठीक है, 10% लॉ या लिंडमैन्स रूल. दिस रूल सेज दैट only 10% energy is transferred to the next trophic level. We have trophic level. पहला क्या हमारे पास, producer. Producers have the primary consumer. Primary consumers depend on, primary consumers depend on producers. Secondary consumers depend on the primary consumers. Then tertiary consumers. All right, whatever the energies have the producers, like if we have the energy 1000 kilojoule, इसका सिर्फ और सिर्फ 10% ओनली ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास. यानी 10% जब ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 1000 into 10/100. okay, it will be thousands का क्या हो जाएगा 100 किलो जूल. ऐसे ही इसका 10% ओनली ट्रांसफर होगा. इसका 10% कितना हो जाएगा बच्चा, 10 किलो जूल. इसका 10% हो जाएगा 1 किलो जूल. तो टॉप कंज्यूमर्स तक आते रहते द एनर्जी वाज वेरी लेस, बहुत कम एनर्जी हो जाती है. इसलिए 4-5 ट्रॉपिक लेवल के बाद ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि इनके पास बहुत ही कम सोर्स ऑफ एनर्जी बची रहती है. तो इसको हम लोग लिंडमैन्स का भी रूल कहते हैं, 10% लॉ कहते हैं. ठीक है, 10% रूल फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. तो लिंडमैन in 1942 फाउंड दैट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 10%. और ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. This is the unidirectional flow. Okay, and 90% of energy is lost. Digestion, respiration and other body activities में ये lost हो जाती है 90% energy. तो this is the food wave, जो कि food chain का connectivity link होता है. बहुत सारे food chain को मिला करके हम लोग food wave बना सकते हैं. और you can say that multiples of the sum of food chain equal to food wave. Sum of food chain equal to food wave कह सकते हो. Differences is very important. Most of the एक 10% लॉ इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक माना जाता है. एक इकोलॉजिकल पिरामिड्स और दूसरे आपके डिफरेंसेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव. तो फूड चेन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल. एंड व्हाट अबाउट द फूड वेव, इसमें सिंगल नहीं होगा, सेवरल सीरीज ऑफ द ट्रॉपिक लेवल. यहाँ पे आपका फूड चेन है एंड हियर इज द फूड वेव. okay, it contains straight sequences, it contains networks, interconnected chains within the food chain. Okay, next it supports only 4 to 6 population.
बस 4 से 6 से ज्यादा नहीं होते, बिकॉज एनर्जी इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड. अब ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव. बट व्हाट अबाउट दिस, इट सपोर्ट्स मेनी पॉपुलेशन थ्रू द इकोसिस्टम. एक दूसरे के ऊपर ये इंटरकनेक्टेड होकर जुड़े रहते हैं. ओके, एक्चुअल में फूड चेन की अगर हम बात करें, इट इज द वेरी आइडियलिस्टिक कंडीशन, एंड फूड वेव इज द नेचुरली जो होने वाले प्रोसेस होते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं. Only one type of organism of the lower trophic level is used for food by the organism of higher trophic level. सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होता है, ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल. अपने से हायर वाले का सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म फूड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाता है. इन द केस ऑफ फूड चेन, व्हाट अबाउट फूड वेव, एन ऑर्गेनिज्म कैन चूज 2 और मेनी ऑर्गेनिज्म एज ए फूड. एक ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं. हियर यू कैन से द ऑर्गेनिज्म हैव multiple resources for their food. ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के पास एक सिंपल लैंग्वेज में बोले, इट हैव द ओनली सिंगल रिसोर्सेज, ओनली वन रिसोर्सेज. डेफिशिएंसी और एक्सेस मेक्स द चेन अनस्टेबल. अगर मैंने बताया कि फ्रॉग एलिमिनेट कर देंगे या ग्रोसोपर एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे बहुत अनस्टेबिलिटी, पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा इन द केस ऑफ फूड चेन. लेकिन अगर हम फूड वेव की बात करें और वहां पे कोई एक ऑर्गेनिज्म को हम डिसिमिलर एलिमिनेट कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिज्म दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर अपने शिफ्ट हो जाएगा फॉर देयर फूड. तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डज नॉट अफेक्ट, that does not cause much differences. बहुत ज्यादा differences ये cause नहीं करता है. लेकिन अगर यहाँ पे करें it cause the much many more differences. Okay, it is unable to restore the population endangered. जो endangered population इनको ये store नहीं कर पा रहे हैं, but it provides opportunity to endangered species to restore its population. endangered species यानी जो top consumers हैं, जिनमें resources बहुत कम पहुंच रहे हैं, जिनके पास एनर्जी बहुत कम है, तो ये एक दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे दे हैव चांसेस ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, बट अगर हम फूड चेन आइडियलिस्टिक कंडीशन लेके चले कि क्या सिर्फ एक ही फूड के ऊपर डिपेंड है, तो इफ द फूड इज नॉट अवेलेबल, द ऑर्गेनिज्म विल बी eliminated from the population. Because this is the difference between the food chain and food wave, and it is very important topic. जैसे कि 10% लॉ important होता है, वैसे ही ये भी important होता है. This is also very 108 बार important. अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की. तो पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किस चीज का? रिसोर्सेज का, एनर्जी का, फूड का, बायोमास का. ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक ट्रॉपिक लेवल में हमारा नंबर्स 500 ऑर्गेनिज्म है, तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में उससे ज्यादा है, तो उससे कम है, तो उससे ज्यादा. इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स. मतलब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिवन बाय द एल्टन इन 1927 आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स. अब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? इकोलॉजिकल पैरामीटर्स नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं बायोमास, ऑर्गेनिज्म का वेट कितना है. और बायोमास का कहने का मतलब होता है ऑर्गेनिक वेट. इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक वेट. और ऑर्गेनिक वेट में भी आपका ड्राई वेट होना चाहिए, वाटर के साथ नहीं होना चाहिए. तीसरा एनर्जी की बात करते हैं हम लोग. ठीक है, arranged in a succession produces at base herbivores above them followed by the primary secondary tertiary and carnivores या टॉप कंज्यूमर्स के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं. इन सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करना, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स जैसे अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ
नंबर। ठीक है, यहाँ पे 10,000 फ्रेश वाटर सिम्स है, इसमें 1000 इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो पिरामिड्स होते हैं बेसिकली बेटा वो दो टाइप्स के होते हैं। पिरामिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। The pyramids are of 2 types. One is the upright, second one is inverted. इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। प्रोड्यूसर्स को हमेशा हम लोग नीचे बॉटम पे रखते हैं। अपराइट पिरामिड जो बनेगा ना वो कुछ इस टाइप का बनेगा, सीधा ऐसे। ये प्रोड्यूसर्स हो गए और ये ऊपर सारे कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, व्हाट अबाउट इन्वर्टेड? इन्वर्टेड वर्ड का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड इमेज पढ़ते हो आप लोग फिजिक्स में, वैसे ही इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे प्रोड्यूसर है, इसमें क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मान लो एक और बना दे, टॉप कंज्यूमर। तो पिरामिड उल्टा कब बनेगा? पिरामिड हमेशा सीधा कब बनेगा? पिरामिड सीधा तब बनेगा व्हेन द नंबर ऑफ, इस केस में व्हेन द नंबर ऑफ producers is greater than consumer. When number of producers is greater than consumers. और inverted कब बनेगा? When number of producers is lesser than the consumers. When number of producers is lesser than consumers. कंज्यूमर्स के नंबर अगर प्रोड्यूसर्स से कम है तो पिरामिड विल बी इन्वर्टेड। प्रोड्यूसर्स के नंबर कंज्यूमर्स उसके ऊपर फीड करने वाले से ज्यादा है, द पिरामिड विल बी अपराइट ऑलवेज। ओके, द पिरामिड विल बी अपराइट इन दैट केसेस। तो दिस इज योर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब ये देखो प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे 1000 है, ये प्रोड्यूसर्स है, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ये आपके टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, दिस इज द टॉप कंज्यूमर। आई होप द कलर इज नो फिट। What I am saying कि this is the producer, this one is the primary consumer, secondary consumer, C for consumer, tertiary consumer and top consumer. this word C मतलब क्या है? consumers। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स अगर ज्यादा है तो पिरामिड विल बी अपराइट। यहाँ पे नंबर्स की बात करें, चाहे ऑर्गेनिक वेट की, बायोमास का वेट की बात करें या किसी भी चीज की बात करें जिसमें प्रोड्यूसर्स हम ज्यादा होंगे, चाहे वेट में, चाहे एनर्जी में, चाहे आपके नंबर्स में, तो ये क्या कहलाएंगे? अपराइट पिरामिड कहलाएंगे। तो ये हमें दिख रहा है जो, दिस इज द अपराइट पिरामिड। ठीक है, अब जरा सा दूसरा देख लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? ये हमें प्रोड्यूसर्स का, ये बायोमास का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ द बायोमास, जिसमें प्रोड्यूसर्स देखो बेटा ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स के कार्निवर्स, कार्निवर्स टॉप कंज्यूमर्स। तो अगर हम वेट की अगर बात करें तो इसका ये 1 2 3 4 प्लांट्स हैं, जो इनका वेट है वो क्या है? 1000 kg है इनका वेट, ऑर्गेनिक वेट, और ड्राई ऑर्गेनिक वेट इनका क्या है? 100 kg है। इनके इस लेवल पे 10 kg मिल रहा है और इसमें हमें क्या मिल रहा है? 1 kg मिल रहा है। तो ये पिरामिड जो बन गया, दिस वन इज द अपराइट। लेकिन अगर सेम पिरामिड्स हम एक्वेटिक सिस्टम में देखें बायोमास का, तो एक्वेटिक सिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर प्लैंक्टॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज द फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स बेटा बहुत छोटे छोटे प्रोटिस्टा होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, यूनिसेलुलर बहुत छोटे छोटे। अब इसके ऊपर
दूसरा हार्बिवोर्स फिशेस होती हैं, फीड कर रही है, इसके ऊपर कार्निवोर्स फिश फीड कर रही है। इनके नंबर्स तो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर्स तो इनका बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम वेट करें तो इनका वेट बहुत ही कम होगा। तो प्रोड्यूसर्स का वेट कम है, यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो लेस देन कंज्यूमर है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो मोर देन कंज्यूमर्स है। किस पे रिस्पेक्ट में? बायोमास के रिस्पेक्ट में। बायोमास के रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रोड्यूसर ज्यादा है, कंज्यूमर्स कम है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कम है, कंज्यूमर्स कम ज्यादा है। तो इस केस में जो पिरामिड बनेगा दैट इज द इन्वर्टेड, किस टाइप का बनेगा? इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर सेम पिरामिड में अगर नंबर का बोलती है एक्वेटिक सिस्टम में, तो वो पिरामिड बनता हमारा अपराइट। अगर हम सेम टू एक्वेटिक सिस्टम का पिरामिड मास की जगह पे नंबर में कैलकुलेट कर दे तो जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड लेट मी नो बाय योर कमेंट्स, बाय इन योर कमेंट बॉक्स कि ये कैसे नंबर्स का पिरामिड, ये फाइटोप्लैंक्टन्स वाला यानी एक्वेटिक सिस्टम वाला अपराइट बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा। एक और पिरामिड्स की बात करते हैं, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। It is always upright. The pyramid of energy is always upright. क्यों upright होता है? Because the transfer of energy is by 10% law, or you can say Lindman's rule. ठीक है, लिंडमैन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होता है। तो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स रूल और अकॉर्डिंग 10% लॉ, तो सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी हमेशा क्या है? कम होती जाएगी। जब एनर्जी कम होती जाएगी तो जो पिरामिड्स बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा बच्चा? पिरामिड्स विल बी अवर अपराइट। पिरामिड्स कैसा बनेगा? अपराइट बनेगा। आइदर यू कैन सी हियर सनलाइट के पास इतना कुल जो एनर्जी है, प्रोड्यूसर्स के पास इतना है, देन कम होती जा रही है ना। तो प्रोड्यूसर्स हैव ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स। तो जो पिरामिड बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? अपराइट ही बनेगा। एनर्जी का पिरामिड कभी डिस्टर्ब नहीं होता। एनर्जी का पिरामिड हमेशा 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 अपराइट बनता है, कभी भी कोई और पिरामिड एनर्जी का नहीं बनता। Clear? Next, discuss about the biomagnification और bioaccumulation. The magnification word का मतलब होता है कि different ट्रॉपिक लेवल्स में ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस non-biodegradable substance are transferred from one trophic level to another. Yeah, you can say accumulation. और मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब होता है क्या? इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में इनलार्जमेंट हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का हो रहा है। व्हाट अबाउट बायो एक्यूमुलेशन? यहाँ पे बेटा एक ही ऑर्गेनिज्म में इस एक ही ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर इंक्रीजेस विद इन द ऑर्गेनिज्म। बट व्हाट अबाउट बायोमैग्निफिकेशन? ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। देखो ये अलग फिश है, ये इसके ऊपर ये खा रहा है, यानी कि दिस वन इज द प्राइमरी कंज्यूमर्स, this one is the secondary, this one is tertiary and this one would be the top consumers. ये कौन हो सकता है? टॉप कंज्यूमर्स हो सकते हैं। और सब में ये जो एक्यूमुलेशन है रेड कलर वाला जो आप देख पा रहे हो, किसी कंसंट्रेटिव सब्सटेंस का, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में, दैट इज कॉल्ड एज द बायोमैग्निफिकेशन। अब ये सेम ऑर्गेनिज्म है और टाइम के साथ हम इसमें बढ़ता हुआ देख रहे हैं। टाइम के साथ यानी कि एक उसकी लाइफ साइकिल में अगर हम किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का इंक्रीमेंट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बायो एक्यूमुलेशन। ओके,
दिस इज कॉल्ड एज द बायो अक्यूमुलेशन। और यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछता ही है, मस्ट है एक क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है ओजोन लेयर एंड हाउ इट्स गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर होती क्या है और इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, ये तीनों चीजें ही आपको पढ़नी है। और कौन कौन से डिफरेंट लाइक एक्शन लिए गए इसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, वो भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना होता है। तो ओजोन इज द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन, डायटोमिक, जनरली जो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं दैट इज डायटोमिक, O2 के फॉर्म में होता है। और अगर O2 में एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, O3, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स which is essential for aerobic respiration. O2 is essential for aerobic respiration, O3 essential नहीं होती है। A good quality of ozone occurs in the upper part of the atmosphere called stratosphere में सबसे ज्यादा पाई जाती है, and part of where ozone occur good quantity is called as the ozonosphere, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ozonosphere, जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। इस ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल से ही बनी है हमारी ओजोन लेयर। It lies in the highest 11 to 16 kilometers above the poles, 23 to 25 kilometers above the equator, ये लगभग इसकी लोकेशन है। अब ये फॉर्म कैसे होती है, ठीक है, ओजोन लेयर बेटा फॉर्म कैसे होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन विद द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये O2 O3 मॉलिक्यूल्स है, ये जब ब्रेक होती है तो इट्स फॉर्म्स O2 प्लस ऑक्सीजन, ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट इज वेरी हाईली reactive species। इज वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज में कंसीडर किया जाता है। अब जरा सा देखो कि क्या होता है इसके साथ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, when it's react with the O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3, तो ये बना लेता है हेलो ऑक्साइड प्लस O2 निकाल देता है, ठीक है। ये फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आके इससे बाइंड करता है, इसमें से जो निकलेगा ये सॉरी ऑक्सीजन जो आ गया इसको, तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। बेसिकली इट इज रिएक्ट विद इट्स फॉर्म विद द ये हैलोक्साइड का प्रॉपर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द जिसको हम लोग ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में कंसीडर करते हैं। तो कैसे ओजोन डिप्लेशन होता है, डिप्लेशन यानी कि होल होना, ओजोन होल बिकॉज ऑफ द दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या होता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, DDT, और बहुत डिफरेंट लाइक गैसेस हार्मफुल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, दीज आर द गैसेस। तो ये सारे कुछ जो जिनको हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस विच कॉज द होल इन द ओजोन लेयर या विच डिप्लेट द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर वेरी प्रोटेक्टिव और इनका फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू। अब यहाँ पे देखो इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इट कॉज द स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करते हैं, लार्वल डेथ करा देते हैं एंड ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कॉज करते हैं। और म्यूटेशन की वजह से और स्पेशिएशन जनरेट होता है, नया कुछ नया अलग अलग कान मान सब उल्टा सीधा जनरेट हुआ ऑर्गेनिज्म मिलेगा। सबसे ज्यादा तो कॉज करते हैं क्या, स्किन कैंसर। अब गार्बेजेस क्या होते हैं और गार्बेजेस में वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो कैसे मैनेज करना होता है, दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे पिग्स एंड कैटल फीडिंग, रैक पिकर्स जो कूड़ा बिनते हैं घूम घूम करके, कंपोस्टिंग करा देते हैं, कंपोस्टिंग का जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द मैन्योर्स, ठीक है, मैन्योर्स इनका प्रोडक्ट मिल जाता है। बायोगैस प्रोडक्शन, इंसिनरेशन बेसिकली हम लोग करते हैं मेडिकल वेस्ट का। मेडिकल वेस्ट को बेटा एक चैम्बर में, कंप्लीट चैम्बर में पैक करके इसको जला देते हैं ताकि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये मेडिकल वेस्ट के
वेस्ट को हम इसमें क्या करते हैं, अंदर डाल के जला देते हैं ताकि इसका जो गैसेस पार्टिकल है वो निकले ना बाहर, ठीक है। और इसको धीरे 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 बाहर निकालते हैं ताकि हार्मफुल इफेक्ट इसके कम से कम हो सके। लैंड फिलिंग, कहीं बहुत खाली बंजर सी जमीन है उसमें हम गड्ढा खोद करके और जितने वेस्ट है उसको ढक करके डाल करके उसको बंद कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द लैंड फिलिंग। अगर हम वेस्ट की टाइप्स देखें तो हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट on the basis of their decomposition. Biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste are generally organic waste होते हैं. These are the organic waste. ठीक है। एंड ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं इनका डिकम्पोजिशन कह लो या इनका ब्रेकडाउन जो होता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स होता है। किसके थ्रू होगा? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया, फंजाई, etc. Non-biodegradable waste are generally inorganic in nature, generally, but it cannot be decomposed by decomposers. डिकम्पोजर से ये डिकम्पोज नहीं होंगे लेकिन इनके बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। और उसमें से भी ये क्या होते हैं? पाइल अप होते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं और इकट्ठे होने की वजह से ये दिस कॉज लॉट्स ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, क्रिएट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बेकार इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता। ओके, so this is all about your chapters. Let's discuss some questions is previously asked and important ones. Look over the questions. This shows that the कोई food wave है ये, this is a food wave. Okay, study the given figure of a food wave, yes, and identify the primary consumers in the food wave. Primary consumers जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यानी हमें क्या देखना है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में क्या होंगे? हमेशा प्लांट होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होगा वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे देखो प्लांट्स कहाँ पे है? दिस वन इज द प्लांट्स, दिस वन इज द प्लांट्स, और ये प्लांट्स का प्रोडक्ट सीड। इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है बेटा माइस, रैबिट। तो माइस एंड रैबिट वुड बी योर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगर यहीं पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पूछता तो इसके ऊपर जो डिपेंड है यानी कि कैट एंड फॉक्स एंड बियर वुड बी द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स रैबिट एंड माउस, माइस एंड बियर, माइस एंड, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट one. Let's move to the next question. Write the percentage of this question carry 2 mark. Okay, write the percentage. Write the percentage of पहला solar energy captured by the autotrophs. This is typing error. Autotrophs यानी कि प्लांट्स के थ्रू कैप्चर की जाती है, दैट इज योर 1%. अगर आप 1% लिखते हो यू विल गेट 1/2 mark. The energy transferred from autotrophs to the next level of the food chain, that is the 10% energy. And अगर आप 10% लिखते हो you will get 1/2 mark. What is trophic level? Trophic level is the sequential thing जिसमें one organism is depend on the another, ठीक है।
तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड्स। लेवल ऑफ द फूड, एनर्जी और इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम इज नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स? गिव रीजन। 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल में अगर हम जाएंगे तो एनर्जी इज वेरी लेस, एनर्जी इज वेरी लेस, the organism will not survive। बच्चा इसकी डेफिनेशन पे, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन पे यू विल गेट 1/2 मार्क्स, और बहुत कम होना एनर्जी हो जाएगी। ए बिग नो कि 4-5 ट्रॉपिक लेवल से आगे का नहीं होता है, बिकॉज और एनर्जी बहुत कम होती है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे पॉपुलेशन से। तो इसके लिए आपको मिलेगा 1/2 मार्क्स। तो फाइनली यू विल गेट द 2 मार्क। राइट वन डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक जो आपका ऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो सके, जैसे प्रोड्यूसर डिकम्पोजर जो डिकम्पोज हो सके, उसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम से, डिग्रेडेबल का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो जाएगा? जो कि इनसे डिग्रेड ना हो सके, इनसे ब्रेक डाउन ना हो सके, दिस इज कॉल्ड एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जरा से देखो बच्चा क्या डिफरेंसेस पूछा है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, एंड लिस्ट 2 इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द इस टाइप ऑफ द accumulated waste on environment if not disposed of properly। अगर डिस्पोज नहीं होगा प्रॉपरली तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो इम्पैक्ट देख लेते हैं, पहले तो वेस्ट देखते हैं। 1 डिफरेंसेस लिखो। फर्स्ट वन इज द, इतना बड़ा लाइन नहीं खींचना है। फर्स्ट वन इज द, एक ही तो डिफरेंस पूछा। नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा देखो फर्स्ट डिफरेंस, decomposition of such substance take place through the microorganism। ठीक है। दूसरा डिफरेंस हम लोग क्या देखेंगे? पहला डिफरेंस, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो लिख सकते हो नॉन डिकम्पोजिशन या नॉट डीके, नॉट डीके ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल waste, not decay of non-biodegradable waste by decomposers। एग्जाम्पल आ जाता है डिकम्पोजर्स का फंजाई एंड बैक्टीरियाज। एक तो आपने ये लिख दिया, राइट वन डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस लाइन का आंसर आपका हो गया। अच्छा डीके अगर हो जाएगा तो देर इज नो बैड इम्पैक्ट। बैड इम्पैक्ट कहने का मतलब कि पोल्यूशन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं देर इज नो पोल्यूशन। यहाँ पे नो पोल्यूशन, और यहाँ डीके नहीं होगा
So the like non-biodegradable waste are pile up and cause the pollution in the atmosphere. ओके, दूसरी चीज ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये दीज आर द इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली एंड नो चांसेस ऑफ biomagnification. What about these beta? These are the, or I can write the same page. ये पाइल अप होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं, तो accumulation leads the biomagnification. Accumulation of non-biodegradable waste leads the non-biodegradable waste leads the biomagnification. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो DDT। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं और इसके एक्युमुलेशन दैट लीड्स द बायोमैग्निफिकेशन। ओके, नेक्स्ट, इन 1987 an agreement was formulated by the United Nations of Environment Program UNEP to freeze the production of X to prevent of the Y, X and Y respectively referred to. X would be और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रोडक्शन बंद करने के लिए बोला गया था कि अप टू 2000 तक, मतलब हम लोग जब 20th सेंचुरी में एंट्री करेंगे तब हमारे पास एकदम बिल्कुल भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम लिस्ट होना चाहिए, मतलब नहीं का मतलब कि एकदम हो ही ना, या अगर हो तो एकदम ही लिस्ट हो। तो यहाँ पे X would be chlorofluorocarbon and prevent the depletion of Y, Y would be your ozone layer। तो X क्या होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, Y should be your ozone layer। ये तो उल्टा कर दिया, ऑप्शन नंबर सी would be the correct one। Let's move to the next question। Which of the following features related to biodegradable substance? Which of the following features related to biodegradable substance? Broken down by the biological process, ये बात तो बिल्कुल सही है, biodegradable waste है तो। Remain inert, no। Persist in environment for the long time, no। तो डिग्रेड हो जाते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए ये रहेंगे कैसे। नेक्स्ट, may harm the ecosystem, बिल्कुल हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर इवन नो हार्म द इकोसिस्टम, बिल्कुल हार्म नहीं करते। नेक्स्ट है, स्टडी द फूड चेन। दिस फूड चेन, स्टडी द फूड चेन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है। If the amount of energy is available at the third tropic level is 100 किलोजूल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी कि 1 2 3, यहाँ पे जो एनर्जी है हमारे पास, दिस इज द 100 जूल। ठीक है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर्स लेवल, यानी कि इसके पास, लीफ के पास कितनी एनर्जी होगी। अगर इसके पास 100 है तो इसके पास कितनी होगी बेटा, 1000 अकॉर्डिंग टू द 10% रूल, 1000 जूल्स। और इसके पास कितनी होगी, लीफ के पास 10,000 जूल एनर्जी होगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10,000 जूल। एक नंबर एकदम आराम से मिल जाएगा।
It is possible to have 2 more trophic levels in the food chain. इसके आगे like 1 2 3 4 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहा है कि क्या पॉसिबल है कि 2 और ट्रॉपिक लेवल हम बढ़ा दें इधर. 2 more tropic level in the food chain just before 4th tropic level. Just before 1 2 3 4. It's possible to have 2 more tropic level in the food chain just before the 4th tropic level. Just before the 4th tropic level. 4 मतलब कि पहले एक ये हो जाएगा, दूसरा ये 4th ट्रॉपिक लेवल के बिफोर तो वैसे पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर दिस 2 ट्रॉपिक लेवल पहुंचाना पॉसिबल नहीं है. देयर इज ए नो. क्यों नो? बिकॉज energy would be very less. Would be very less as per 10% rule. ठीक है. And what about the before 4th tropic level? तो before 4th tropic level ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. चूज द ऑप्शन गिविंग ए करेक्ट मैच ऑफ द आइटम्स गिवन द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड. अच्छा, इसको मैच कराना है आपको. पहले तो देखो फिजिकल इन्वायरमेंट्स. फिजिकल इन्वायरमेंट्स आर बेसिकली योर एबायोटिक कंपोनेंट्स. एक्सपोजर और यूवी रेडिएशन कॉज द स्किन कैंसर. क्लोरोफॉर्म एक्शन कंपाउंड्स कॉज द ओजोन डिप्लेशन. Decomposers are the bacteria and fungi. ऑप्शन नंबर ए के लिए 4, सॉरी ए के लिए 3, 1 2 3 3 सब में है. अच्छा, बी के लिए यू विल गेट 4. यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला. ठीक है, इसको और इसको अभी हम एलिमिनेट कर देंगे. बी और सी में से हम देखेंगे. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए 1 आएगा, सी के लिए 1, यहाँ पे 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन. ऐसे मैच कराते हैं जिससे कि हमारे पास टाइम भी कम, मतलब हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है मैच द कॉलम क्वेश्चंस के लिए. ओके, एक्स इज द गिवन फूड चेन इज. एक्स पेडी प्लांट, ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर. एक फूड चेन इंडिकेट कर रहा हूं और ये हो जाएगा टर्सरी कंज्यूमर. अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टर्सरी कंज्यूमर शुड बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट बैलेंस्ड इकोसिस्टम. अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है अबाउट द बैलेंस इकोसिस्टम के लिए कि बैलेंस इकोसिस्टम में के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो पहले इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं तो इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहता है. ठीक है, यानी कि फूड वेब से हमारा इकोसिस्टम, ये तो बात सही है. It involves interdependence among the living organism and the environment. ये बात भी बिल्कुल सही है. Animals are dependent on plants, but plants are not dependent on animals. So this statement is the incorrect one. हम animals are dependent on the plants as well as the plants are also dependent on the animals for their food, for their survival, for their different things. ठीक है, अगर animals हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो हम भी, सॉरी, प्लांट्स हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी प्लांट्स हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम भी तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके दे रहे हैं ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा अनबैलेंस्ड वाला स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है, इन द फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी loss to the environment and horizontal arrow indicates the transfer of the next trophic level. Okay, which one of them 3 vertical arrows A, C and E and which one of the 2 horizontal arrows B and D will represent more energy transfer? Okay, हमें क्या पूछा बेटा? more energy transfer. ये questions also carry the 2 mark. तो एक आपका अगर हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, पहला केस हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल, और दूसरा केस इज अवर वर्टिकल. सेकेंड केस इज द वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो बी एंड डी है,
यहाँ से इसके पास वट एवर द एनर्जी इज हैव, दिस इज द प्रोड्यूसर्स, इसका 10% जाएगा और इसका फिर इधर 10% जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, बी के थ्रू। तो will represent the more energy transfer, तो horizontally B represents the more energy transfer, ठीक है। vertically what we have seen A, C and E, तीन चीजें हैं। vertically हमारे पास A, C और E है। इसमें से ज्यादा कौन एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बाहर। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ए रिलीज द मैक्सिमम, ए रिलीज द मोर एनर्जी, ए रिलीज द मोर एनर्जी, दिस इज द करेक्ट। दोनों लिखोगे आप, इसके लिए बी, इसके लिए ए, यू विल गेट द 2 मार्क, 1 मार्क फॉर दिस वन, 1 मार्क फॉर दिस वन। Next question, which group of organisms are not constituents of the food chain? तो फूड चेन का कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए, जरा सा देखो भाई। ग्रास, लायन, रैबिट, ओल्फ, ये तो फूड चेन का पार्ट हो जाएंगे। ग्रास के ऊपर खाएगा, ग्रास के ऊपर पहला रैबिट, रैबिट को ओल्फ, और ये फोर्थ है, ठीक है। दूसरा प्लैंक्टॉन्स, मैन, फिश, ग्रॉसहोपर्स। प्लैंक्टॉन्स एक्वेटिक सिस्टम का है, ये हो जाएगा। इसके ऊपर फिश फेस करेगी, फीड करेगी, ये भी एक्वेटिक। मैन मान लो फिश को खा लिया, थर्ड वन। ग्रॉसहोपर्स कहाँ से आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड चेन। इसमें क्या आ गया है, ग्रॉसहोपर्स, और ये बेटा टेरेस्ट्रियल का है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले केस में एक्वेटिक सारा, ओके। नेक्स्ट है वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। ग्रास को यहाँ पे खाने वाला कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। तो ग्रास इज द इनकरेक्ट वन, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फूड चेन का पार्ट नहीं हो सकता। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रासहोपर। अच्छा, ग्रास को ग्रास है, ग्रास को ग्रासहोपर्स खा लेगा, ग्रासहोपर्स को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, स्नेक को ईगल खा लेगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ द फूड चेन। फूड चेन का ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन इन दिस केस। Next question, DDT was sprayed in the lake to regulate the breeding of mosquitoes. लेक में मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रेगुलेट करने के लिए पेस्टिसाइड, बेसिकली जो DDT होता है ना, दिस इज द पेस्टिसाइड्स, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इज ए पेस्टिसाइड्स एंड नॉन बायो, ठीक है। Regulate the breeding of mosquito. How would it affect the trophic level in the following food chain associated with the lake? कैसे, ये justify your answer. This question also carried the 2 mark. तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहला पॉइंट सबको मेंशन करना पड़ेगा कि DDT is the non biodegradable waste. ठीक है, इसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क। दूसरा आप लिखोगे इट एक्युमुलेट इन डिफरेंट टॉपिक लेवल, यू विल गेट द हाफ मार्क, ठीक है। तीसरा चीज लिखोगे बाय एक्युमुलेशन ऑफ दिस कॉज द बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वन, और इसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। और तो ये भी लिख सकते हो कि हॉक हैव द मैक्सिमम
DDD concentration or have maximum DDT concentration. के पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मिसमैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट. मिसमैच पेयर कौन सा है? बायोमैग्निफिकेशन मतलब होता है accumulation of the chemicals at the successive trophic level of a food chain. ये बात तो सही है. Ecosystem biotic component of the environment, not only biotic components, biotic plus abiotic दोनों ही होता है. Aquarium is man-made ecosystem. Parasites organism which obtain food from other living organism. तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इकोसिस्टम इज द components of the ecosystem, the compiled form of the biotic as well as the abiotic components, both the form. Okay. Next question. Pyramid of energy is the total energy of the ecosystem, net energy of an ecosystem, energy consumed by the various organism. Graphic representation of energy level at each trophic level. It is the graphical representation. Net energy हम नहीं कह सकते, ठीक है, ना ही हम टोटल एनर्जी कह सकते. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion region based questions are there in which if both assertion and region are true, R is the correct explanation of assertion, then option number A would be the correct one. Both assertion and region are true and region is the not the correct explanation of assertion, then option number B would be the correct one. A is true, assertion is true but region is false, then option number C. And A is false but region is true, then option number C. चलो भाई देखते हैं. क्वेश्चन कहता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट. बात बिल्कुल सही है. इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. नो, ये उल्टा बोल दिया है. एक्चुअली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनटू सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक या सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कह सकते हैं. assertion is true but region is false. इसके लिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन. Next, the energy which passes through the herbivores does not come back to autotrophs. Yes, बात सही है. जो एनर्जी यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ पास हो गई है, वो कंज्यूमर से एनर्जी जो पास हो गई है कि इधर नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो फ्लो होता है इट इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. 10% लॉ के अकॉर्डिंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल. Flow of energy in a food chain is unidirectional. Yes, option number like assertion is correct, region is also correct and region is the correct explanation of the assertion. इसके लिए हो जाएगा option number A is the correct one. Next question. Greater number of individual is present in lower trophic level. Lower trophic level में हमारे पास कम organism है. Yes, greater number, ज़्यादा organism. बात सही है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है. The flow of energy is unidirectional and lower trophic level have the maximum energy. यहाँ ये भी लिख सकते हैं and lower trophic level have maximum energy. ठीक है, इसके लिए भी ऑप्शन नंबर A is the correct one. Okay, this is the questions. और मैक्सिमम मैंने इसमें मैक्सिमम इस चैप्टर से 1 मार्क क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं. ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं. ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्व किया एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ऑल दिस क्वेश्चंस विच आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.